स्क्रीन विजिबल है? Okay, so the next diagram is communication diagram. Communication diagram is called collaboration diagram in UML 1 point versions like 5, etc. So this communication diagram is interaction diagram which shows interaction between objects and or parts represented as lifeline using sequence of messages in free form arrangement. तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन डायग्राम है इट इज़ एन अल्टरनेट नोटेशन ऑफ सीक्वेंस डायग्राम. तो जो कुछ भी हम सीक्वेंस डायग्राम में शो कर सकते हैं वी कैन आल्सो शो विद कम्युनिकेशन डायग्राम. कम्युनिकेशन डायग्राम corresponds could be converted to or from or replaced by a sequence diagram. There are various UML tools which provide the transformation facility between sequence diagram or communication diagram. One of the tool is visual paradigm. Visual paradigm अगर आप उसका कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करें तो वो आपको ये फैसिलिटी देता है विच इज़ फ्री. So how it looks like, here you can see the sequences are depicted with numbers. नंबरिंग से सीक्वेंस पता चलता है और मैसेज ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है. तो अगर हम ये 3 ऑब्जेक्ट्स को देखें तो ये शो कर रहा है कि फर्स्टली ड्रॉ मैसेज विल बी सेंड फ्रॉम A to B and then paint message will be sent from B to C. And similarly, if we want to depict a parallel activity, then we can say that A is sending a message draw to B, which is 2.3, and again it is also sending message C. So message parallel is depicted with number 2.3, 2.3. दोनों 2.3 हैं. It means that these messages will be sent in parallel. Any question on this slide? No, sir. Okay, let's see another example of communication diagram. It's a little bigger diagram. इसमें let's find the sequence. Sequence कैसे चल रहा है? तो सबसे जो छोटा नंबर है it is 1 number. So first of all, find books message will be sent from the customer or actor to this bookshop, online bookshop object. From here, next message will be search to inventory. Third message will be 1.2, that is view book to book object, and fourth message will be 1.3, that will be from book line to shopping cart. After 1.3, the number is 2. Then second message will be sent checkout message from the customer to online. Then is 2.1, second message is this one. Then third message is this one, 2.2, and then 2.3 is the fourth message. So this how the point is, the message is that we can depict message with numbers. लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप फ्री फॉर्म है, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स जो डिपिक्ट करने हैं, एंड यू कैन ईजीली समटाइम्स इस तरीके से चीज़ों को डिपिक्ट करना और एक्सप्लेन करना आसान होता है. तो इसलिए दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डायग्राम
provided by UML. Okay. Now these are टॉप पे देखें तो सीक्वेंस डायग्राम है और बॉटम पे देखेंगे आपको ये है कम्युनिकेशन डायग्राम। तो आप ये देखेंगे मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों डायग्राम्स इक्विवेलेंट हैं। तो कैन यू रिलेट इन के ये वाकई इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है? थोड़ा इस पे गौर करें। सर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस तो इक्विवेलेंट है, तो रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से देखा जाए तो सेम ही है सर। सबसे पहला एग्जीक्यूशन की मैसेज, टाइमिंग डिफरेंट है। पहला मैसेज होता है ना सीक्वेंस डायग्राम में, जो सबसे टॉप पे होता है वो पहला मैसेज होता है। तो यहाँ पे उस मैसेज को हमने नंबर 1 से शो किया क्रिएट को। इसके बाद आ रहा है नंबर 2, ये वाला आ रहा है सेट एक्शंस। तो यहाँ पे देखें सेट एक्शंस है, नंबर 2 पे आ रहा है। उसके बाद मैसेज आ रहा है नंबर 3 पे, ये डिस्ट्रॉय मैसेज आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर 3 में 2 के बाद 2.1 आ रहा है, तो ये 2 है, 2 के बाद 2.1 ये वाला है सेट वैल्यूज, और फिर ये 2.2 है, और उसके बाद फिर नंबर 3 मैसेज आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड देन नंबर 3 इज द फिफ्थ मैसेज। और ये जो इंटरेक्शन है इट इज बिटवीन क्लाइंट एंड ट्रांजैक्शन, एंड दिस कम्युनिकेशन इज बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड OBD proxy. So these two diagrams are equivalent. Okay, the next diagram is timing diagram. Timing diagrams are UML interaction diagrams used to show interaction when primary purpose of the diagram is to reason about the time. Timing diagram focus on conditions changing within and among lifelines along a linear time axis. Let's see the example. This example is showing the stages of Alzheimer. Stages of Alzheimer, यहाँ पे हमने number of stages लिख दिए हैं, stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and time is यहाँ पे time जो है वो x एक्सिस पे है। ठीक है, टाइम यूं बढ़ रहा है इस तरह x एक्सिस पे, जबकि y एक्सिस पे टाइम नहीं है बल्कि नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं जी नॉर्मल फॉर जो अर्ली कन्फ्यूजन है, अर्ली कन्फ्यूजन का टाइम है बिटवीन 2 to 7 years। माइल्ड अल्जाइमर जो है फिर इट इज़ 2 to 2 years। फिर मॉडरेट 1 to 1.5। तो हम बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस शो कर रहे हैं टाइम के लिहाज से कि जी कितना कितना किस चीज़ में कितना टाइम लग सकता है। तो इट्स ए एलिगेंट वे ऑफ डिपिक्टिंग अ simplified way of depicting various time durations of various states. Let's see another example. It's again it's an elegant example of depicting user experience website latency. और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में नोड्स, ये उनकी वो नज़र आ रहे हैं आपको वाई एक्सिस पे, वेब यूज़र, वेब ब्राउज़र, DNS रिजॉल्वर, सर्वलेट, डाटा एक्सेस एंड JSP। हम डिपिक्ट ये कर रहे हैं कि वेब यूज़र जो है जब कोई क्लिक करता है, पेज खोलने की कोशिश करता है, तो मुख्तलिफ नोड्स आएंगे रास्ते में, पाथ में मुख्तलिफ नोड्स आएंगे, एवरी नोड विल टेक सम टाइम, और अल्टीमेटली जब उसको क्लिक करके और उसको वेट करेगा तो उसको अल्टीमेटली एंड पे रिजल्ट देखें, ये पूरे ड्यूरेशन है। जिस यहाँ पे उसने URL क्लिक किया और यहाँ पे पेज आके शो हो रहा है उसको, तो बीच में टाइम कहाँ पे लगा,
दिस इज व्हाट वी आर डिपिक्टिंग कि ये जो यूआरएल क्लिक जहाँ पे यूज़र ने किया है और उसके बाद वेट कर रहा है और उसके बाद जाके उसको व्यू कर रहा है जाके इतनी देर के बाद, तो टाइम कहाँ लगा? तो हम कह रहे हैं जी कुछ टाइम वेब ब्राउज़र ने कंज्यूम किया बाय इन रिजॉल्विंग, उसने प्रोसेसिंग में थोड़ा सा ये इतना टाइम लगाया वेब ब्राउज़र ने प्रोसेसिंग में। उसके बाद फिर डीएनएस रिजॉल्वर के पास गया, उसने कुछ टाइम लगाया, फिर डीएनएस रिजॉल्वर ने इसको वेब ब्राउज़र को वापस डीएनएस भेजा, फिर यहाँ से इसने प्रोसेसिंग की आगे वेब सर्वलेट को, फिर सर्वलेट ने कुछ टाइम लगाया डेटा गेट करने में। वो डेटा गेट करने के लिए उसने डेटा एक्सेस लेयर को एक्सेस किया, वहाँ पे कुछ टाइम लगा हमारा। डेटा एक्सेस लेयर से हमें वापस रिप्लाई आई है सर्वलेट को, सर्वलेट ने फिर थोड़ा सा टाइम लिया, फिर जेएसपी को कॉल किया, जेएसपी ने कुछ पेज रेंडर होने में टाइम लगा, प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लगा, कुछ रिस्पॉन्स सेंड करने में टाइम लगा। तो प्रोसेसिंग के बाद फिर वापस ब्राउज़र को, ये इतना टाइम लगा ब्राउज़र को डेटा वापस पेज वापस रिसीव होने में, फिर ब्राउज़र ने अपनी प्रोसेसिंग की है, फिर जाके इसको यूज़र को शो हुआ है। सो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है टाइमिंग डायग्राम की यूज़ की कि किस तरीके से हम डिफरेंट इंटरेक्शंस का आपस में टाइमिंग वगैरह के साथ बड़े अच्छे तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं। Okay, these are some of the references from where you can read further, UML को देख सकते हैं, and it ends lecture 5 and it also ends overview of UML. तो UML की हमारी डिस्कशन खत्म हो गई है। At the end of this chapter you will get will get an assignment ताकि you should get some hands on UML diagrams, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से डिफरेंट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके जी, एनी क्वेश्चन सो फार बिफोर क्लोजिंग द लेक्चर? सर असाइनमेंट की डेडलाइन क्या होगी? 1 वीक। अब मुझे किसी ने कहा था आप में से कि जी एक ही दिन क्विज और एक दिन असाइनमेंट, तो अब इस वीक में तो क्विज था तो अगले वीक में असाइनमेंट जमा कराएंगे, अब क्विज नहीं होगा। ठीक हो गया? और कुछ मामलात बाकी ठीक चल रहे हैं मामलात? सर यही मामलात खराब है सर, ये थोड़ा आगे कर दें सर, 2 वीक कर दें क्विज को, असाइनमेंट को 2 असाइनमेंट वीक को। करोगे फिर क्लैश आ जाएगा उसका, असाइनमेंट का और क्विज का, तो क्लैश आप सर चाहते नहीं क्विज़िस हैं। सर क्विज़िस वैसे होल्ड पे नहीं है सर नस्ट की तरफ से। वो कर लेंगे हम डिस्कस बाद में। देखें मकसद तो यही है कि क्विज आपके आपकी तैयारी हो जाती है ना, क्विज का मकसद यही होता है। तो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, अगर आप क्या हो सकता है पॉलिसी भी चेंज भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल फाइनल डिसीजन तो होगा वो तो फिर नस्ट पॉलिसी के मुताबिक ही होगा, लेकिन सिचुएशन पता नहीं अब आगे बेहतर होगी, क्या मामला बनते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। बहरहाल डिसीजन फाइनल जो भी होगा वो दैट विल बी एज पर नस पॉलिसी। ठीक है जी, यानी एनी सर अदर? अभी ये 1 वीक ही दिया आपने? 1 वीक काफ़ी है, उसको आपको 4-5 घंटे लगेंगे आपके, और बस 4-5 घंटे का काम होगा। ठीक है जी, थोड़ा घंटा घंटा रोज लगा लें प्लीज जी। 1 वीक में नेक्स्ट वीकेंड सर इंक्लूड कर दें, क्योंकि वीकडेज में काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वीकेंड पे वो आपका ठीक है, संडे नाइट रख दूंगा, 2 दिन भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सर। चलो सही हो गया। ओके जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़।